عوام کی جیب پر سفری سہولیات بھی بھاری پڑنے لگیں۔ شہریوں کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہونے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ریلوے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایہ بڑھا دیا۔ جنوبی پنجاب کے ہر شہر سے چلنے والی گاڑیوں کا کرایہ بڑھ گیا۔ مسافر بلبلا اٹھے، فوری ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ عوام کی جیب پر سفری سہولیات بھی بھاری پڑنے لگیں۔ شہریوں کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہونے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ ریلوے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایہ بڑھا دیا۔ جنوبی پنجاب کے ہر شہر سے چلنے والی گاڑیوں کا کرایہ بڑھ گیا ہے۔ مسافر بلبلا اٹھے، فوری ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عوام کی جیب پر سفری سہولیات بھی بھاری پڑنے لگیں۔ شہریوں کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہونے لگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات۔ ریلوے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایہ بڑھا دیا۔ جنوبی پنجاب کے ہر شہر سے چلنے والی گاڑیوں کا کرایہ بڑھ گیا ہے۔ ملتان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 50 سے 70 روپے فی کس سواری کے حساب سے کرایہ بڑھا دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملتان سے ڈی جی خان کا کرایہ 500 سے بڑھا کر 550 کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں احمر خان سے۔ جی احمر۔ جی بالکل، ملتان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بات کریں تو ٹرانسپورٹر نے بھی جو ہے وہ کرایہ جات میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ کرایہ اضافے کے حوالے سے بات کریں تو 50 سے 70 روپے جو ہے وہ فی کس سواری کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے۔ میں اس وقت ملتان میں لاری اڈے پر موجود ہوں۔ یہاں پر مسافر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اڈا مالکان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے کہاں جاتے تھے، کتنا کرایہ دے کے جاتے تھے، اب کہاں جا رہے ہیں اور کتنا کرایہ دے کے جا رہے ہیں؟ اب جہاں توسا کا کرایہ پہلے تھا 550، اب ہے 600۔ ظاہری بات ہے اس میں ٹرانسپورٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے آپ مطلب کہ پیٹرول بڑھتا ہے وہ کرایہ تو انہوں نے بڑھانا ہے۔ اور دوسری بات یہ مشکلات اس چیز کی ہے کہ اب بندے تو پریشان ہو رہے ہیں، گاڑی ادھر آتی نہیں ہے۔ اکثر گاڑی گیس پہ ہے، گیس بند ہے، گاڑی نہیں آتی ادھر۔ پیٹرول پہ گاڑی والے کہتے ہیں جی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مجھے بھی پتہ ہے، ظاہری بات ہے خرچہ باقی پورا نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہاں پر شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مسافر ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے کرایہ جات میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اڈا مالکان بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ قربان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اضافہ کیوں کیا گیا ہے کرایے میں اور 50 سے 70 روپے اضافہ اچانک کر دیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا سامنے آئی ہے؟ جو پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا، مجبوری ہے، ٹرانسپورٹ کافی تو مالکان نے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ اگر ہم کرایہ نہیں بڑھاتے ہیں تو مالکان کو کچھ نہیں بچتا ہے، وہ کھڑی کر دیں۔ کرایہ بڑھاتے ہیں تو مسافروں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کو تو ہمارا یہ اپیل ہے تو ڈیزل پیٹرول میں کمی کر کے جو سفر کرتے ہیں، مجبوری میں مسافر ہیں، ان کو ریلیف ملے۔ باقی جو اشیاء ہیں ان میں بھی نمایاں کمی کی جائے کیونکہ عوام کو ریلیف ملے۔ عوام تو ہمیشہ جب بھی ہم الیکشن میں دیتے ہیں تو بڑے جوش سے ووٹ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی حکومت آئے جو ہمیں ریلیف ملے، تو لہذا ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت پریشان ہے عوام مہنگائی کی وجہ سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی جانب سے 2 بار جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی اس طرح سے؟ کیونکہ کرایہ جات مسافر بھی پریشان ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ اگلا یہ ہے جو ٹرانسپورٹ کو تو بند کر ختم کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ۔ اکثر ٹرانسپورٹ ابھی بھی کافی تقریباً ہمارے اڈے میں بہت گاڑیاں ہوتی ہیں، کافی ٹرانسپورٹ مالکان نے گاڑی بند کی ہیں۔ ابھی ہم نے 5% کرایہ بڑھایا، اس میں بھی ان کو مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ کھڑی کر دی ہے گاڑی انہوں نے۔ کچھ مختلف گاڑی ہیں۔ اچھا ہم نے جو ہے نا اپنی طرف سے گاڑیوں کو ریلیف دیا، جو اڈا ہے ہم نے اپنے اڈے کم کر کے ان کو چلو چلاتے ہیں بھائی، چلو مسافر بھی سفر کریں، کوئی مجبور ہے، کوئی کس قسم سے آتا ہے، مجبور میں ہر بندہ آتا ہے، اس کو بھی ہم بہت پریشان دیکھتے ہیں۔ تو کچھ مختلف گاڑیاں ہم چلا رہے ہیں مجبوری میں، باقی گاڑیاں کافی۔ جی بالکل، یہاں پر جو اڈا مالکان ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے سے کرایہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ مسافروں کے حوالے سے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ گاڑیاں جو ہیں انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے وہ بند کر دی ہیں۔ مزید بھی یہاں پر جو ہے وہ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے کہاں جاتے تھے، کتنا کرایہ دے کے جاتے تھے، اب کتنا دے کے جا رہے ہیں؟ میں منکیرے جا رہا ہوں، پہلے ہم آتے تھے 800 دے کر اور اب جا رہے ہیں 1200 دے کر۔ جب سے مہنگائی ہوئی ہے تب
तकरीबन शहरियों को बहुत ही मुश्किल आ मतलब 50% इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि अब 400 इजाफा मनसेरे का कर दिया है। जी 400 इजाफा कर दिया मनकेरे का जी। क्या समझते हैं, किससे अपील करना चाहते हैं, किससे दरख्वास्त करना चाहते हैं जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी से मुसाफिरों को भी आसानी हो सके? मैं वज़ीर आज़म मरीम नवाज शरीफ से यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करें और हम गरीब आवाम की तरफ भी कुछ मुतवज्जो हों कि हमारा क्या हाल चाल इस टाइम है, और मेहरबानी करके ये सब चीज़ों के कमी करें। और जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिरों का भी यही कहना है कि दिन ब दिन जो है जैसे ही हुकूमतें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है, उसी तरह से जो है वो किराया जात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर ने भी और साथ साथ जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, उन्होंने भी आला हुकाम से दरख्वास्त किया है, खासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की जाए ताकि मुसाफिर भी सफ़र कर सकें। जी ठीक है अहमद खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहीम यार खान चलते हैं जहां फ्यूल की बढ़ती हुई कीमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सफर करना अब मुश्किल क्योंकि जेब पर भारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने फ्यूल की कीमतें बढ़ते ही किराए बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर्स ने फी स्टॉप 50 रुपए से 400 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। रहीम यार खान से हमें अपडेट करने के लिए आसिम सदीक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी आसिम, बताइएगा। जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और कीमतें बढ़ने के ऐलान के साथ ही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। ये किराए एक पैरामीटर्स किए जाते हैं कि सादा बस और एयर कंडीशन बस उसका फी किलोमीटर के हिसाब से ये किराए बढ़ाए जाते हैं, मगर ये पैरामीटर्स जो है वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। अब फी स्टॉप के हिसाब से ये किराए बढ़ाते हुए ये बढ़ाए गए हैं, जिसमें से ये कम से कम जो किराया बढ़ाया गया है वो 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये। यानी कि अगर आपने सफ़र करना है तो आप ज़हन पे ये रख के सफ़र करें कि आपके जेब पर ये भारी पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता नहीं है। क्योंकि किराए जो बढ़ाए गए हैं वो अपनी मन मर्जी के साथ पैरामीटर्स को नज़रअंदाज करते हुए फी किलोमीटर का जो पैरामीटर्स है उसको नज़रअंदाज करते बढ़ाए गए हैं। कम से कम जो नज़दीक से नज़दीक 30 किलोमीटर का जो स्टॉप है उसका 50 रुपये तक किराया बढ़ाया गया है, और जो स्टॉप तकरीबन 150 भावलपुर तक जो तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है उसका किराया तकरीबन 300 रुपये तक, 200 से 300 रुपये तक किराया बढ़ाया गया। इसी तरह लाहौर और कराची, इस्लामाबाद के जो किराए हैं जो दूर के डिस्टेंस है वो 400 रुपये तक बढ़ाए गए हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो जो शहरियों पर आ रहा है। कितने किराए बढ़ाए गए हैं, आपको कितना मुश्किल आता है? बहुत मुश्किल आता है जी, बहुत किराया ज़्यादा कर दी है जनाब। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, किराया कम किया जाए। तो आपको क्या मुश्किल करना पड़ता है? क्या घर वालों का सब रहीम यार खान में फ्यूल की बढ़ती हुई कीमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सफ़र करना अब मुश्किल हो गया है क्योंकि जेब पर भारी पड़ता है। ट्रांसपोर्टर्स ने फ्यूल की कीमतें बढ़ते ही किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स ने फी स्टॉप 50 रुपए से 400 रुपए तक किराए बढ़ा दिए हैं। आसिम सदीक से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, एक बार फिर उनकी जानिब चलते हैं और जानते हैं कि मुसाफिरों का क्या कहना है। देखिए, मेरे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं। ये बताएं कि किराया कहा जाता है कि किराया जो बढ़ाया जाएगा वो फी किलोमीटर के हिसाब से, मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किराए बढ़ाए गए हैं वो स्टाफ के हिसाब से बढ़ाए गए हैं। तो क्या पैरामीटर्स हैं, कितना पेट्रोल बढ़ गया जो आप लोगों के अखराजात बढ़ गए जितने किराए बढ़ा दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ ये है कि जब भी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होती है तो हमें बुला लिया जाता है कि किराया कम करें। अब 2 दफ़ा पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, और हम पहले एलपीजी पे चलते थे, गैस पे चलते थे, लिहाजा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको ख़त्म किया जाए, पेट्रोल और डीजल पे किया जाए। और पेट्रोल और डीजल पे हमने पेट्रोल पे चलाई हुई हैं, हमारी वैगन्स हैं जो उसका ज़्यादा खर्चा है, हैवी इंजन है उनके, और 2800 सीसी इंजन है, और हमारा बहुत खर्चा है, हमारे अखराजात पूरे नहीं। और गवर्नमेंट जो है कि वो कहती है जो पुराना किराया आपका चल रहा है पर किलोमीटर 3 रुपये वही आप वसूल करें। हम तो मुश्किलात में पहले भी धुसे हुए हैं, हम परेशान हैं ट्रांसपोर्टर सब कि हम बचत होती है, हमारी गाड़ियों के जेन्युइन इंजन नहीं है, ये जो पेट्रोल हमने डला है आर्टिफिशियल किए हुए हैं, और इस पे फ्यूल पंप जो है वो काम नहीं करता। हमारा डेली कहीं ना कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, और पेट्रोल पे हमें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप भी ट्रांसपोर्टर्स हैं जी, तो क्या आप लोग क्यों किराए इस तरह से बढ़ाते हैं कि जो लोगों पर बोझ पड़े? जब हुकूमत एक निखरामा मुकर्रर किया है उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते?
नहीं पूरा होता ना, डीजल पेट्रोल पे नहीं गाड़ी चलती, टायर महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब डीजल महंगा होता है ना, हर चीज़ महंगी हो जाती है, हर चीज़ पे आग लग जाती है। 1500 तो टायर चढ़ गया, मोबाइल चढ़ गया, ग्रीस चढ़ गई, टूल प्लाजे चढ़ गए, तो किधर पूरा करें हम लोग। बिल्कुल, ये महंगाई का कहा जा रहा है कि महंगाई है। इस महंगाई में जब चीज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, फ्यूल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, तो इसका असर हर चीज़ पर आता है। किराए बढ़ जाते हैं, उसके फिर उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ जाती है, टायर की कीमत बढ़ जाती है, टोल प्लाजे वो बड़े होने की शिकायत की जा रही। कहते हैं कि जब इतनी महंगाई हो तो फिर किराया बढ़ाना हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ये ट्रांसपोर्टर की तरफ से है। जबकि जो मुसाफिर हैं वो इस वजह से परेशान है कि जब भी वो सफ़र करने की कोशिश करते हैं तो किराया बढ़ा हुआ पाया जाता है। जो उनका बजट है उसके बजट में वो सफ़र नहीं आता जहाँ पर उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुँचना ज़रूरी होता है उनके लिए। जी आसिम सिद्दीक, हमने देखा है कि हर दफा ही किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। मुताल्लिका हुकाम की जानिब से इस हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। मुताल्लिका हुकाम से आपने इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उनका क्या कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स आज खुद किराए बढ़ा भी देते हैं और उनका नफाज भी कर दिया जाता है। हम देखेंगे कि एहतजाज भी होगा, लेकिन ये किराए वहीं पे वहीं मौजूद रहेंगे। मुताल्लिका हुकाम इस हवाले से इतने बेबस नजर क्यों आते हैं? आसिम सिद्दीक के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रहीम यार खान में फ्यूल की बढ़ती हुई कीमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असरात, सफ़र करना अब मुश्किल क्योंकि जेब पर भारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने फ्यूल की कीमतें बढ़ते ही किराए भी बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान रेलवे का मुसलसल तीसरी बार किरायों में इजाफे पर मुसाफिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2%, जबकि कोयला बरदार गाड़ियों के किरायों में 3%, फर्टिलाइजर पर 2% इजाफा कर दिया गया। किराया बढ़ने पर मुसाफिरों का इजहार तशवीश। कहते हैं किराया बढ़ने से रोजाना सफर करने वालों पर बराह रास्त असर पड़ेगा। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में जो है वो मुसलसल तीसरी बार इजाफा कर दिया है। अब फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जो है वो तमाम किस्म की मुसाफिर ट्रेनों में 2% इजाफा किया गया है, जबकि माल बरदार कोयला ट्रेनों में जो है वो 2% और इसी तरह माल बरदार फर्टिलाइज़र ट्रेनों में जो है वो तकरीबन 3% का इजाफा किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप माजूर भी हैं और इसके साथ ट्रेन का सफ़र करने के लिए आए हैं। ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है, ट्रेनों में जो दी जाने वाली सहूलियात हैं उनसे मुतमिन दिखाई देते हैं जिस तरह से किरायों में इजाफा होता है? एक तो माजूर आदमी हूँ, ठीक है, थोड़ा सी तंगी भी होती है। फिर उसके अलावा इन्होंने जो 2 से 3% किराए में इजाफा किया है, उससे ये है कि फिर सहूलियात भी कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये देख लें, ना कोई सफाई होती है ना कुछ होता है, सारा हाल बेहाल होता है। और एसी वाला करवाते हैं, एसी पार्लर करवाए तो उसमें भी इन्होंने वो एसी चलता ही नहीं है इनका। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसे वापस अपनी जगह पे ले। मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। दूसरी जो सहूलियात यकीनी बनानी चाहिए रेलवे इंतज़ामिया को ट्रेनों के अंदर, उस हवाले से भी जो है वो नाक़िस सूरत-ए-हाल नज़र आती है। हमारे साथ और भी मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनों के किराए में मुसलसल 3 बार इजाफा, आवाम के साथ ये ज्यादती की जा रही है। पहले ही गरीब तबका जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है और मज़ीद ट्रेनों के किरायों में इजाफा करना, क्या ये हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है? नहीं, इसके अंदर ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम जो है उसके लिए सहूलियात के अंदर इजाफा करें, किरायों के अंदर कमी करें। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। आम आवाम पहले ही खाने के लिए तरसती है, उनकी पहले घर की रोटी पूरी नहीं होती और पेट्रोल और इन चीज़ों के किराए जब बढ़ जाते हैं तो आवाम मज़ीद पिसती चली जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कम से कम ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं, कम से कम इसके अंदर आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि आवाम इन चीज़ों से निकल के अपने खाने पीने की तरफ और बाकी मसले मसाइल के अंदर जो है ना उसको पूरा कर सके। जिसने करना ही ट्रेन का सफ़र होता है। ट्रेन का सफ़र जो पहले हम समझते थे, एक तो ये सस्ता सफ़र था और मियारी सफ़र समझा जाता था, लेकिन अब ना ही तो ये सस्ता सफ़र रहा है और ना ही अब ये मियारी सफ़र रहा है। ज़्यादातर जो मुसाफिर हैं, हम देखते थे, ये देखें अब जो स्टेशंस हैं हमें वीरान दिखाई देते हैं।
چاہے یہ ملتان کا سب سے بڑا بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس حساب سے مسافر نہیں آتے جس طرح مسافر جو ہے وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو اس حساب سے آتے تھے۔ اب زیادہ تر جو ہے مسافروں کا رجحان پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ ٹرین بلکہ جو ہے وہ بسوں کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر ریلوے انتظامیہ کو جو ہے وہ چاہیے کہ ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کرے نہ کہ اضافہ کرے۔ جی رانا بلال ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خانیوال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اضافہ 8 سے 10% کیا گیا۔ کرایوں میں اضافے سے مشکلات کا سامنا ہے، مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، دوسری جانب ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے، کہیں 10% تو کہیں 8% جو ہے وہ کرائے بڑھائے گئے ہیں۔ لاہور کا کرایہ خانیوال سے 1950 روپے لیا جا رہا تھا، تو اب وہی کرایہ جو ہے 2150 روپے کر دیا گیا۔ اس طرح ملتان کے کرایے کی بات کریں تو 150 روپے تھا، اب 200 روپے کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کا کرایہ جو ہے وہ یہاں سے 1200 روپے تھا، جو کہ 1400 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح مختلف ٹرانسپورٹروں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کرائے بڑھا لیے ہیں، جب تو یہ کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی کرایہ نامہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم اس میں بات کرتے ہیں، مسافر ہمارے سے موجود ہے، کیا کہیں گے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو ساتھ ہی کرائے بھی بڑھ گئے ہیں۔ جی بہت حالات خراب ہے ادھر، پہلے 1900 کرایہ لیتے تھے، ابھی 2200 2300، جدھر دال لگے بس والوں نے بہت کرایہ بڑھا دیا۔ اب پہلے ابھی ملتان جاتے تھے 100 روپیہ بھی لے لیتے تھے، 150 میں بھی جاتے تھے، تو ابھی انہوں نے 200 250 300 بھی کبھی لے لیتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں۔ نہ بسیں ٹائم پہ ملتی ہیں، نہ کوئی ریلیف، عوام کو ریلیف مل ہی نہیں رہا، بہت ذلیل کی ہوا ہے۔ یہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، عوام کا یہ کہنا ہے، مسافروں کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ٹرانسپورٹر سے جو ہماری یہاں پر بات، ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے کرایہ نامہ اضافے کا باقاعدہ سرکاری کرایہ نامہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن مقامی طور پر ٹرانسپورٹروں نے جو ہے وہ اپنے کرائے ضرور بڑھا دیے ہیں۔ محمد ندیم مغل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں متعدد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 2 تا 3% اضافہ کیا۔ اے سی کوچز کے لیے بہاولپور تا لاہور 2000 سے 2100 کر دیا گیا۔ بہاولپور تا منچن آباد کرائے میں 55 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بہاولپور تا منچن آباد کرایہ 1100 سے بڑھ کر 1155 روپے ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جودھیانہ سے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بہاولپور کے کچھ ٹرانسپورٹرز نے کرایہ نامہ جو ہے اس میں تبدیلی کی ہے، اور بہاولپور اگر ہم مرکزی لاری اڈا کی بات کرتے چلیں تو 2 ایسے ٹرانسپورٹرز ہیں جنہوں نے کرایہ بڑھایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرایہ نامہ ہے وہ یہاں پہ لگا بھی دیا گیا ہے، اور 2 سے 3% جو ہے وہ کرایہ نامے میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ لاہور جانے والے جو مسافر ہیں ان کے کرایے میں 100 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور جو لوکل روٹ ہیں وہاں پر بھی تقریباً 50 سے 70 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کتنا مسئلہ ہوتا ہے جب کرایہ بڑھتا ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد کاشف ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نا پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے یہ مطلب بسز والے کرائے میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی پیٹرول بڑھتا ہے تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ارن کرنے کے لیے نہ کوئی ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے نا عام مسافروں کو زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ جہاں وہ جاتے تھے اس ٹائم 260-70 میں ایک منتھ 10-15 دن پہلے، اب وہ جاتے ہیں 290 میں، 30-40 روپے کا ادھر سے کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ ہاں جی بالکل جی، مسافر جو ان کا یہ کہنا ہے کرایہ جو ہے وہ کم ہونے چاہیے، لیکن جو خود ساکھ وہ کیا جا رہا ہے، اور 2 ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے بہاولپور سے دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان میں اضافہ کیا ہے۔ جی طاہر جودھیانہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے آفٹر شاکس، بس اور ویگنوں کے مالکان نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بہاول نگر سے لاہور، ملتان، بہاولپور اور دیگر شہروں کے کرائے بڑھ گئے، جس سے مسافروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں قاسم علی شیخ۔ جی قاسم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہونے سے جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویگن اور بسوں کے مالکان ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ کرائے میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے بھاون نگر سے ہارون آباد جانے والے کرائے میں تقریباً 20 سے 30 روپے، اسی طرح بھاون نگر سے چشتیہ جانے والے کرایہ جو ہے اس میں بھی تقریباً 20 سے 30 روپے اضافہ ہوگا، جبکہ بھاولپور جانے کے لیے جو تقریباً 100 سے 150 روپے اضافہ کر دے۔ اسی طرح بھاون نگر سے فیصل آباد جانے کے کرائے میں بھی جو ہے 100 روپے اضافہ کر دیا۔ دوسری طرف بھاون نگر سے لاہور جو ہے اس میں 200 روپے کا اضافہ کیا گیا،
और भावनगर से इस्लामाबाद जाने के लिए तकरीबन 250 रुपये किराए में इजाफा हो गया है। शहरी जो है वो पहले ही महंगाई से परेशान थे, हालिया जो कीमतें इजाफा हुआ है उससे एक नई लहर महंगाई की सामने ही है और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। भावनगर और भावलपुर के दरमियान 750 रुपये से जो किराया है वो बढ़कर 900 रुपये हो गया और लाहौर का किराया है वो तकरीबन जो है वो 1500 रुपये से बढ़कर 1700 रुपये किराया होगा। इसी तरह अगर हम बात करें भावनगर से मुल्तान जाने के लिए, तो भावनगर से मुल्तान जाने का जो किराया है उसमें भी 75 से 150 रुपये इजाफा कर दिया गया। शहरी जो है वो सताए हुए अवाम शदीद मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिससे जहाँ किरायों में इजाफा होता है वहीं जो है वो दूसरी अशिया की कीमतें भी बढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख। अब रुख करते हैं डीजी खान की जानिब, जहां पेट्रोलियम तो महंगा हो गया मगर ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजी खान में पुराने किरायों पर ही सर्विस जारी रखी हुई है। इंतजामिया किरायों में इजाफे का ऐलान जल्द करे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। डेरा गादी खान मेन बस स्टैंड इस वक्त मौजूद है, जहां पर हम जानते हैं कि यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हुआ है या कि अभी तक इजाफा नहीं हुआ। उससे पहले अगर डीजल की कीमत में इजाफे की बात की जाए तो 11 रुपये 37 पैसे जो डीजल है वो महंगा हो चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही जो पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत है वो 272 रुपये 15 पैसे जो है वो मुकर्रर हो चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर हो चुकी है। तो यहाँ पर इन कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में कितना इजाफा हुआ है ये हम इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। हम तो पुराना किराया ले रहे हैं, 300 रुपया मुल्तान का। कल कितना किराया था, परसों कितना था? कल ही 300 था, परसों 300 था, अब भी 300 है। अभी भी 300। अभी तक कोई किराए का इजाफा नहीं हुआ। 2 दफा डीजल बढ़ चुका है, इंतजामिया खामोश है। अगर 2 रुपये डीजल घट जाए ना, इंतजामिया रोड आ जाती है, चलान करती है और जुर्माने करती है, बंद करती है। अब जो है ना इंतजामिया खामोश है, सोई हुई है। जी, इनका ये कहना है कि अभी तक इनके पास किरायानामा नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी जो किराए हैं वो नहीं बढ़ाए गए। इंतजामिया का इंतजार कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, मुल्तान का यहाँ से ये जो लोकल बस आप मेरे अकम में देख सकते हैं 300 रुपये पहले था और अभी भी ये 300 रुपये के किराएनामे ही काट के दे रहे हैं। जी इकबाल सादिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों से दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा है। गंडा सिंह पहला पर पानी की सतह 10 फीट से बढ़कर 12.3 फीट हो गई। 24 घंटों में पानी का अखराज 1700 क्यूसेक से बढ़कर 4200 तक पहुंच गया। हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद 23,000, अखराज 20,668 रिकॉर्ड। महकमा अनहर बहावलपुर हेड इस्लाम पर 14,000 क्यूसेक पानी स्टोर करने के बाद डिस्चार्ज में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा अनहर का कहना था कि हेड इस्लाम पर पानी का अखराज 15,000 क्यूसेक से बढ़कर 16,970 क्यूसेक हो गया। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 18,810 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। हेड मेल्सी साइफन पर पानी का अखराज 6,713 क्यूसेक से बढ़कर 8,000 क्यूसेक हो गया। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी का बहाव 3,000 क्यूसेक है। बल्लो की सुलेमांकी राब्ता नहर से हेड सुलेमांकी में 14,000 क्यूसेक पानी की मुंतकिली जारी है। खुशाब में दरिया जहलम मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरिया जहलम में पानी की आमद 50,000, अखराज 38,000 क्यूसेक है। इंतजामिया का कहना था कि दरिया में पानी की सतह काफी नीची है। 1 लाख क्यूसेक से जायद पानी बाआसानी गुजर सकता है। महकमा अनहार को 1,30,000 क्यूसेक रेले की इतला पर हाई अलर्ट जारी किया था। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। दरिया सिंध में तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में उतार चढ़ाव के बाद तौंसा बैराज मामूल के मुताबिक बह रहा है। तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,06,438 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड तौंसा बैराज से पानी का अखराज 1,96,438 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं शौकत मलाना से। पेश नजर पूरे मुल्क में जो है सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन हेड तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में कमी वाक़ हुई है। इस वक्त हेड तौंसा बैराज के मकाम पर 2,06,438 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ जो इसका अखराज है 1,96,438 क्यूसेक है। हेड तौंसा बैराज से जो नहरें निकाली गई हैं उनमें इस वक्त 2 नहरें चलाई गई हैं। मुजफ्फरगढ़ केनाल को 6,000 क्यूसेक और डीजी खान केनाल को
4000 क्यूसेक पानी की फराहमी महकमा आबपाशी की जानिब से जारी की गई है। 2 खिची कैनाल और टीपी लिंक कैनाल को फिलहाल बंद रखा गया है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के स्पेल की रोजाना की बुनियाद पर पेशगोई की जा रही है, लेकिन ताहाल अभी तक किसी भी किस्म की कोई मूसलाधार बारिशें या बारिशों का स्पेल जनूबी पंजाब में दाखिल नहीं हुआ। बादलों की आंख मिचौली रोजाना की बुनियाद पर चल रही है। अगर दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, हिल टोरेंट से पानी तोसा बराज में शामिल होगा और चश्मे बराज से पानी का लेवल अप होगा, तो दरिया सिंध तोसा बराज के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल होगी। लेकिन इस वक्त दरिया सिंध हर तोसा बराज के मुकाम पर किसी भी किस्म की कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। दरिया अपने मामूल पे बह रहा है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना। मुल्तान का मतला अब्र आलूद, सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही है। हब्स बढ़ने से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ने लगी। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन मलिक, उनसे जानते हैं। जी हसन। जी शहर ओलिया मुल्तान और गिरदो नवा के अगर दोपहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से तो जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा था, आसमान पर बादलों का राज भी था। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और हफ्सदा माहौल देखने में आ रहा है। हवा मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है और हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हफ्सदा माहौल होने की वजह से दर्जा हरारत भी मुल्तान शहर का नुमाया हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान शहर का इस वक्त का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन फील्ड लाइक जो महसूस किया जा रहा है वो तकरीबन 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर मौसम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि दोपहर से शाम तक मुल्तान शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जो कि बड़ा वीक सा स्पेल है। इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में सूरज क्योंकि अपनी आबोताब से चमक रहा है, हफ्सदा माहौल है, तो गर्मी की शिद्दत काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और किसी एक जगह पर खड़े होना इंसान के लिए नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। पसीने से इंसान शराबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है और खुली जगह पर होने के बावजूद भी इस तरह से महसूस होता है जिस तरह से इंसान का दम घुटता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो वेदर कंडीशंस इस तरह की हैं कि हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दर्जा हरारत मुल्तान शहर का और स्पेशली जनूबी पंजाब का नुमाया हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान शहर का आज का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया था। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत वैसे तो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड लाइक जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। और दोपहर के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसी तरह से हफ्सदा माहौल रहेगा, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और हब्स की वजह से मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनिया भर में मुल्तानी आम अपनी लज्जत, महक और मयार की वजह से मशहूर है। एडमिनिस्ट्रेटर सब्जी मंडी के मुताबिक आम की रोजाना आमद 15 से 17,000 मन है। सब्जी मंडी में रोजाना मुख्तलिफ क्वालिटीज और ग्रेड्स के आम की नीलामी होती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तानी आम के हवाले से। दुनिया भर में जायके में और अपने पूरा जो मुल्तानी आम है पूरी दुनिया में मुल्तान का आम मशहूर है। और इस हवाले से मुल्तान में कितना आम की प्रोडक्शन होती है, किन किन इलाकों से ये आम आता है और किन इलाकों में ये आम जो है वो जाता है, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जी मंडी मुल्तान समी शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तानी आम की जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वक्त भी आप देखेंगे जो हमारा आम यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो आम जा रहा है मुल्तान डिवीज़न से, वो सिर्फ साउथ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में जाता है, फिर बाहर मुल्क पे एक्सपोर्ट होता है। इस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक हमारा मिडल ईस्ट की तरफ जा रहा है और यूरोप की तरफ भी जा रहा है, जहाँ पे मुल्तानी आम जो है बड़ा शौक से खाया जाता है।
इसके टेस्ट और क्वालिटी की सब तारीफ करते हम हैं। ये भी जानेंगे कि ये सब्जी मंडी में मुल्तानी आम जो है वो कितनी उसकी प्रोडक्शन है या बरामद कितनी है यहाँ पे मुल्तान की सब्जी मंडी में आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? जी, इस टाइम पे ऑब्वियसली सप्लाई हमारी डेली फ्लक्चुएट करती है, कभी बारिशें ज़्यादा होती हैं सप्लाई कम होती है, लेकिन तकरीबन 15 से 17 हज़ार मन हमारा पर डे आम आ रहा है यहाँ पे। वो डिफरेंट क्वालिटीज़ और डिफरेंट ग्रेड्स का होता है। उसमें हम लोग वहाँ पे जो बॉक्सेस आते हैं उनको खोल के चेक करवा रहे होते हैं, उनकी ऑक्शन होती है और वो यहाँ से सप्लाई होता है पूरे पाकिस्तान में। कल हमारी जो मेजर कंसाइनमेंट्स हमारी गई हैं यहाँ से, वो पेशावर की तरफ गई हैं, हमारी कराची की तरफ गई हैं। इस तरीके से पूरा पाकिस्तान जो है उसमें आम इस टाइम पे प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भी बताइएगा कि इस मरतबा जो है वो पिछले सालों की निस्बत आम की प्रोडक्शन ज़्यादा है, और दूसरा कीमत के हवाले से बताइएगा, कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, जो कीमत है आम की वो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड डिक्टेट कर रहा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं इस साल क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा आई हुई है 20% तकरीबन, उसकी वजह से हम देखेंगे आम की प्राइस तकरीबन कोई 5 से 10% कम हो गई है, और ये हम ट्रेंड आगे कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। सवाल ये पूछूंगा कि कौन सा आम आपको जो है पसंद है? मुख्तलिफ अक़साम है आम। वैसे तो सारी एग्जाम अच्छी हैं। मैं स्टार्ट अनवरटोल से किया था, अनवरटोल बहुत अच्छा आया था, मौसमी चौसा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ कि वाइट चौसा इस साल कैसा आता है, वो मैंने सुना है काफ़ी अच्छा होता है, वो उसका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अनवर टोर जो है वो इन्हें पसंद है, ACCT भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, और वाइट चौसा के इंतज़ार कर रहे हैं। यकीनन हम भी इनके साथ वाइट चौसा खाएंगे। आम की पैदावार की बात करें तो मुल्तानी आम दुनिया भर में मशहूर है, और 15,000 टन डेली की बुनियाद पर जो है सब्जी मंडी में आम पहुंच रहा है, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है सप्लाई भी हो रहा है। जी, माहिर इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।